Hello everyone, today's topic is Prarthana. In ancient religion, the rise of prayer was due to protection from predatory animals and natural calamities like a storm, flood, earthquake, etc. The primitive man was completely ignorant and incapable of understanding the law of nature and nature of natural force. तो पहले के टाइम पे जो आदिवासी हुआ करते थे है ना, उस टाइम पे जो लोग थे वो जंगली जानवर या जो नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनसे बचने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था, जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया। तो वो प्राकृतिक नियमों के बारे में और प्राकृतिक दबावों के बारे में बिल्कुल इग्नोर थे और उन्हें नहीं पता था कि इनसे कैसे निपटा जाए। सो that is why, due to fear and insecurity, he imagined different types of god and goddess and started praying. इसलिए उन्होंने बहुत तरह के भगवान और देवी देवताओं को इमेजिन किया, की कल्पना की और उनका प्रेयर शुरू कर दिया कि हमें इनसे क्या मिलेगी, हमें इनसे जो प्रॉब्लम हम फंसे हुए हैं उससे हमें समाधान मिलेगा। Despite today scientific progress, man finds himself unable and helpless. Even today, he has not been able to understand the natural calamities, or nor has he been able to control them. Apart from this, he has no control over the dreaded disease. Therefore, modern men also pray to God or any other divine power for help and protection like ancient man. Although prayer cannot produce any result that violates natural law, like one can be free from disease only by medicine, not by prayer, but still prayer can be helpful in moral upliftment of man. कहने का मतलब ये है कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं, ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से हम प्रार्थना करने लगे। तो ये कुछ ज़्यादा लोगों का मानना है कि पहले के समय में हमें कुछ ज्ञान नहीं था, हम चीज़ों के बारे में जानते नहीं थे, तो हमने प्रार्थना के द्वारा अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कोशिश की। और अब देखा जाए वैसे अब जब हम मॉडर्न एरा में रहते हैं, हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन कई चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गए ना, डिसीजेज हो गए, जो ड्रेडेड डिसीजेज हैं घातक जैसे। तो अब उनसे कैसे लड़ा जाए, तो कहते हैं कि अभी भी कुछ चीज़ें मिस्टीरियस हैं और उनके समाधान के लिए एक रास्ता जो है वो है प्रेयर। Man's belief in some supernatural or divine power is the basis and essential element of religion. In all religion of the world, whether they are underdeveloped or developed, theistic or atheistic, prayer is found in some form or other. According to American philosopher William James, without prayer, there can be no question of religion. बिना प्रेयर के धर्म का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता। So, in undeveloped primitive religion, prayer to God and goddess were done to fulfill the basic need of like food, shelter, security, etc. Prayer, an act of communication by humans with the holy God. Communication by the act of communication by humans with the holy god or gods, the transcendent realm or supernatural power. When people pray, they attempt to connect or communicate with a special entity such as God or gods or dead relatives or exemplary human being who are believed to occupy some special status. There are prayer in which one thanks God for something, and other in which one prays God and express one's adoration. A worshipper may also pray to express a commitment to God or to make a vow.
Penitents pray to confess their sin, to express their repentance, and to ask for divine mercy and forgiveness. In general, any sort of speech act which might be addressed by one human being to another could also be addressed to God and thus be a prayer. Sadhu Sundar Singh, a modern Christian mystic of India, stated that praying is as important as breathing. यानी जिस तरह से आप सांस लेते हैं उस तरह से प्रार्थना करना जरूरी है. Prayer has been described not only as a meditation on God but as a step going out of self, यानी अपने आप से बाहर निकल के आप किसकी तरफ जा रहे हैं? आप दैवीय सत्ता की तरफ जा रहे हैं. एज अ प्रिलिमेज ऑफ द सोल इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड. नाउ ये तो हो गया कि प्रेयर क्या है, कितनी ज़रूरी है, हम क्यों प्रेयर करते हैं. अब प्रेयर के कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ कैटेगराइजेशन हैं जो हम पढ़ेंगे. द टू कैटेगरी ऑफ प्रेयर. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पर्पस, प्रेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. पर्पस की कैटेगरी से, पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रेयर को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं. फर्स्ट इज प्रेयर based on selfishness and prayer based on altruism. So, prayer based on selfishness, a person or a community prays only for their happiness and peace of mind. This is what prayer based on selfishness. यानी एक व्यक्ति या समुदाय जब सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए प्रेयर करता है, ठीक है, तो वो क्या है? सेल्फिशनेस पर बेस्ड प्रेयर है. ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हेन अ पर्सन प्रेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी, इट इज कॉल्ड प्रेयर बेस्ड ऑन ऑल्ट्रुइज्म और ऑल्ट्रिस्टिक प्रेयर. द ऑल्ट्रिस्टिक प्रेयर फॉलोज may all be happy, may all be safe, may all be well, may no one suffer any kind of pain. इस तरह से, यानी सभी सुखी हों, सर्वे सुखम भवन्तु आपने सुना होगा. सो सभी सुखी हों, सभी सुरक्षित रहें, है ना, अच्छे रहें, किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो. The basic purpose of prayer is the self-satisfaction of the worshipper, because some people get self-satisfaction by praying for their own and their family's happiness, and some by praying for the welfare of other. प्रार्थना का जो मोटिव होता है वो होता है कि आपको संतुष्टता मिले, सेल्फ सेटिस्फेक्शन. अब वो किसी को अपने लिए प्रेयर करके आ सकती है और किसी को दूसरों के लिए भी प्रेयर करके आ सकता है. Another categorization, that is individual prayer and collective prayer. So the prayer has a substantial effect on both the individual and community. So far, the explanation of this effect, prayer can be divided into two categories, as I said, individual prayer and collective prayer. The prayer that a person does alone in his home or at a scheduled secluded place in is called individual prayer. यानी ये ऐसी प्रार्थना जो इंसान या तो अपने घर में बैठकर किसी कॉर्नर में करते हैं या एक एकांतिक प्लेस में बैठकर ना, सेक्लूड यानी और चीज़ों से अलग करके, तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत प्रार्थना, इंडिविजुअल प्रेयर. दिस प्रेयर कैन बी सेल्फिश एज वेल एज बेनेवोलेंट. अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो वो सेल्फिश है, और अगर आप दूसरों के लिए कर रहे हैं तो वो बेनेवोलेंट है. When many people gather at a religious place and pray, such prayer is given the noun of collective prayer. For example, prayer offered in church, temple and mosque etc. कि जैसे आपने देखा होगा मंदिरों में प्रार्थना होती है, उनका एक फिक्स टाइम होता है ना, सब सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं, और चर्चेज में होता है, मज़ार में होता है ना, ये आपने सब एक्सपीरियंस किया होगा, तो उसे कलेक्टिव प्रेयर कहते हैं. इट कैन ऑल्सो बी सेल्फिश और बेनिफिलेंट, कि अगर एक
कम्युनिटी सिर्फ अपने खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए कर रही है तो वो सेल्फिश है, और अगर वो और भी दूसरे समुदाय या और पूरी समाज के वेलफेयर के लिए कर रही है तो वो बेनेवलेंट है। It is said that as a result of individual prayer, a person's character is uplifted and he also gets mental peace. For example, if a person prays every day and that God should give him moral, make his character great and create virtue like humanity, generosity, honesty, justice, compassion, etc., then these virtues are generated in him. It does not mean, but remember, it does not mean that God creates all these quality. ये नहीं सोचना कि लोग ये कहते हैं कि प्रार्थना से लोगों में ऐसे कैरेक्टर आते हैं जो उनके कैरेक्टर को अच्छा बनाते हैं, जो उनके चरित्र को अच्छा बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर वो क्वालिटीज क्रिएट करता है। बट पॉइंट क्या है, whereas by doing such prayer repeatedly every day, self mortification is generated in the life of a human being, through which the above mentioned virtue are developed, and he also gets mental peace. But this does not mean that prayer is necessary for the upliftment of a man's character. Even a person who does not believe in prayer can become morally excellent. Similarly, collective prayer also has a substantial impact on human life. As a result of collective prayer, a feeling of mutual friendship and or unity arise among human beings because they believe in the same deity and their method of worship is also same. Religious unity can be considered a desirable effect of collective prayer, but this prayer also has harmful effect on mankind. As a result, a feeling of alienation arises among people who believe in different religion, which causes mutual enmity in the society, है ना। कभी कभी लोग अपने धर्म को लेके बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, और जैसे इसलिए कहते हैं कि कभी कभी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये जो सामूहिक प्रार्थना है वो कभी कभी धर्म युद्ध भी के लिए भी उत्तरदायी हो सकती है। Forms of prayer. The three main ways to approach divine power, or that is physical, vocal, and mental. So, first is physical prayer. The act of prayer require the worshipper to move through several distinct bodily postures, which include adoration, bowing down before the image, performing the rituals called puja with various materials like water, flowers, sandalwood, incense burning, waving of the light before the deity, dance, food offering, etc. कि जैसे कि जो हम लोग पूजा करते हैं, हम फूल चढ़ाते हैं, घंटी बजाते हैं, है ना, हाथ जोड़ते हैं, आरती करते हैं, कई लोग डांस करते हैं, फिर बाद में खाना खिलाते हैं जिसको हम कंजकें या लंगर कुछ भी बोल सकते हैं। ये है फिजिकल प्रेयर। इसको और दूसरी कौन सी है, वोकल प्रेयर। वोकल प्रेयर क्या है, वोकल प्रेयर इज एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और गेस्चर, जिसे आप शब्दों और हाव भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री, very short mantra, form of hymns, as in various forms of puja. In all these forms, the devotee invokes pure thought in his mind through the medium of sound. कहते हैं ना कि जैसे ओम उच्चारण करना चाहिए, उसकी ध्वनि से हम बहुत फर्क पड़ता है ना, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, मंत्रों के उच्चारण से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। मेंटल prayer. This is the highest form of prayer from the spiritual point of view. Mental prayer is a form of meditational prayer. Mental prayer is accomplished by internal act of the mind and affection.
क्या होता है कि मेंटल प्रेयर का मतलब है कि जहाँ आप एकांत में बैठ के शांत प्लेस में मेडिटेशन करते हैं किसी स्पिरिचुअल डिवाइन पावर के लिए ना, तो और मन ही मन आप जो भी कहते हैं, जो भी आप रिकॉल करते हैं, वो सब मेंटल प्रेयर में आता है. इट इज़ यूजुअली कैरिड आउट साइलेंटली along with various form of meditation and contemplation. And the aim of mental prayer is to inflame souls with the love of God and live without sin. Inflame souls with the love of God and live without sin. The practice of this form is possible for an advanced aspirant who is well versed in the right spiritual principle and has good control over his mind and sense. क्योंकि मेडिटेशन करना देखिए इतना आसान नहीं है कि आपका जो ध्यान है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी है कि हमें पार्टी में जाना है, क्या पहनना है, हमें क्या खाना है ना. अगर आपका ध्यान इन चीज़ों की तरफ रहेगा, अगर एक्सटर्नल थिंग्स या वर्ल्डली थिंग्स की तरफ रहेगा, तो आप अपने अंदर की तरफ ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, आप अपने बारे में नहीं सोच पाएंगे, आपका जो मन है वो हमेशा बाहर की तरफ भागेगा. इसलिए ये जो प्रेयर है ये वो लोग कर सकते हैं जिनका अपने मन पे, अपनी सेंसेस पे बहुत कंट्रोल है, और जो अपने मन को शांत करके एक जगह अपना ध्यान लगा सकते हैं, वो ये प्रेयर कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू मदर टेरेसा, इन वोकल प्रेयर वी स्पीक टू गॉड, इन मेंटल प्रेयर ही स्पीक्स टू अस, है ना. तो कि वोकल प्रेयर है कि जहाँ हम ईश्वर से कुछ कह रहे हैं, और मेंटल प्रेयर है जहाँ ईश्वर हमसे कुछ कह रहा है. तो वो सुनने के लिए हमें उतनी उतनी अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, उतनी आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए कि आप उसकी आवाज़ को सुन सकें या महसूस कर सकें. नाउ डिवीजन ऑफ प्रेयर बेस्ड ऑन ह्यूमन गोल, कि ह्यूमन के बहुत सारे गोल होते हैं कि वो किस लिए प्रार्थना कर रहा है, कौन सी चीज़ है जो उसे प्रार्थना की ओर ले जा रही है. तो फर्स्ट इज पिटिशनरी प्रेयर. पिटिशनर मीन्स होता है याचना संबंधी, पिटिशन मीन्स होता है याचना. तो पिटिशनरी मीन्स याचना, याचना मीन्स कुछ मांगना, किसी चीज़ की याचना करना. So petitionary principle, the role of the request in religion has played such a central part. This kind of prayer is very common and used by mostly all human beings. Here we request God for some favor. कुछ मांगते हैं हम उससे, वो कुछ भी हो सकता है, वो जॉब के लिए हो सकता है, मैरिज के लिए हो सकता है, सक्सेस के लिए हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी के लिए हो सकता है. So when a person desires something and finds it difficult to obtain, then he requests God to help him in obtaining that object. For example, health, wealth, long life, etc. are the things that are requested to God. आप कुछ भी मांग सकते हैं, ये है petitionary prayer. Then prayer of confession. कुछ कन्फेस करने के लिए आपने क्रिश्चियनिटी में सुना होगा कि फादर के सामने लोग कन्फेस करते हैं. सो द टर्म कन्फेशन एक्सप्रेस एट द सेम टाइम एन अफर्मेशन ऑफ फेथ एंड रिकग्निशन ऑफ द स्टेट ऑफ सिन. कि ये वो टाइम है जब आप कन्फेस करते हैं, जब आप अपने सिन को पहचान जाते हैं कि हाँ मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने कुछ गलत कर दिया है. अब उस से कैसे छुटकारा मिले, उस पश्चाताप से, उस रिग्रेट से कैसे छुटकारा मिले, कि आपको भगवान से बताना है कि आपसे क्या गलती हुई है ताकि वो आपको माफ कर पाए. When man has felt the need to own his sin and weaknesses because he feels that sin separate him from God, to attain the love of God, sins to be removed, but man find himself weak to conquer sin himself. He prayed to God to give him strength to conquer his sin and weakness by confession. This prayer, on a personal level, lays the sin of man directly before God, who alone is capable, who alone is capable of granting forgiveness and
रिडेम्पशन। क्या होता है कि सिर्फ ईश्वर ही आपको उन पापों के लिए, उन दुष्कर्मों के लिए आपको माफ कर सकता है, इसलिए कन्फेशन जरूरी है। देन प्रेयर ऑफ इंटरसेशन। Members of primitive society have a clear sense of their solidarity in the framework of family, the clan, and the tribe. This solidarity is often expressed in intercessory prayer, in which the needs of others are expressed. In such society, the head of the family prays for the other member of the family, but his prayer also are extending to the whole tribe, especially to its chief. तो ऐसा ये पहले के जो प्रिमिटिव सोसाइटी होती थी उनमें जो सामूहिक रूप से ये प्रेयर करते थे, क्योंकि वो अपनी एकता के लिए जाने जाते थे। और वो प्रेयर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, वो पूरे समूह के लिए और स्पेशली जो उनके चीफ होते थे उनके लिए करते थे। इवन द प्रिमिटिव में प्रे फॉर दोज हु आर नॉट मेंबर ऑफ हिज ट्राइब, उनके लिए भी कर सकते हैं। So this type of prayer refers to one's group, family or society. We request God for the welfare of the whole society or the group and for the power to create harmony in the world. This is the prayer of intercession. Now, prayer for praise and thanksgiving. When our prayers and requests are answered, then our hearts are full of love and worship. जब ऐसा लगता है कि हमने जो प्रार्थना की थी वो पूरी हो गई है, हमने जो रिक्वेस्ट की थी वो पूरी हो गई है, तो हमारा जो दिल होता है वो प्यार और पूजा से भर जाता है। कहने का मतलब कि ईश्वर के प्रति हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इट इज़ ऑफर्ड इन प्रेज ऑफ लव एंड बेनिवोलेंस दैट गॉड हैज शोन टुवर्ड्स मैन, कि ईश्वर ने हम पे अपनी कृपा बनाई है। Praise in this instance constitute an essential element of the mystic experience and celebrate God no longer for his work but for himself, his greatness and his mystery. When the great deeds of God are the theme of praise, it becomes benediction and thanksgiving। कि जब जो बहुत ईश्वर की जब कृपा होती है तो हम उसका धन्यवाद करना चाहते हैं, और जब भी हम उसका धन्यवाद करते हैं तो वो प्रेयर होती है धन्यवाद के लिए की गई प्रेयर। वो हम खाने के वक्त भी कर सकते हैं, है ना, कि आपने हमें खाना दिया, आपने हमारी हर ज़रूरत पूरी की। रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। कई लोग, ये लोगों का अपना अलग अलग टाइम है कि वो कब ईश्वर से धन्यवाद बोलना चाहता है। Even when words denoting thanksgiving are not present, the substance of thanksgiving is manifested. हो सकता है कि आप शब्दों में उसे थैंक्स ना करें, आपका कुछ पोस्चर हो, आपका कुछ गेस्चर हो, कि आप कुछ स्पेशल तरीके से उसे धन्यवाद करते हैं। कई लोग भगवान को चिट्ठी लिखते हैं धन्यवाद करने के लिए, और अपने मंदिर में या कहीं और वो जाके वो चिट्ठी डिलीवर करते हैं, मान लो किसी मंदिर में, कि उनका ये फेथ होता है कि वो चिट्ठी ईश्वर पढ़ेगा। प्रेयर फॉर एडोरेशन। There is no self-interest or nor any fear of God. This is a type of prayer which is the best prayer. कि क्यों बेस्ट है? क्योंकि ना इसमें कोई हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है, ना हम कुछ मांग रहे हैं, और ना हमें ईश्वर का डर है कि हम उसके डर की वजह से मांग रहे हैं, बट फुल एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड्स विल। लेकिन यहाँ पे हम ईश्वर की इच्छा को पूरी तरह अपना लेते हैं, अब पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। हेयर मैन सरेंडर्स हिमसेल्फ कंप्लीटली टू हिज क्रिएटर, कि जो भी है सब आपकी ही वजह से है, मेरा अपना कुछ भी नहीं। सॉरी। प्रॉब्लम्स। अब जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है प्रेयर का, और कुछ कैरेक्टर हैं गॉड के, जैसे ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट, है ना, काइंड, बेनेवलेंस, तो इसके अगेंस्ट कुछ प्रॉब्लम्स रेज होती हैं। वो क्या है? फर्स्ट, इफ गॉड इज ओमनिशिएंट, इट मीन्स दैट ही नोज ऑल द थिंग्स in the world and all the events of the past, present and future very well. So
देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड ऑफ विच ही इज इग्नोरेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर से बचा हो, जो ईश्वर की नॉलेज में ना हो. इन सच अ सिचुएशन प्रेयर बिकम्स ऑफ नो इम्पॉर्टेंस बिकॉज गॉड ऑलरेडी नोज वॉट द वर्शिपर वॉन्ट्स टू रिसीव फ्रॉम हिम. है ना. टू मेक सच अ प्रेयर टू गॉड मीन्स टू डिनाई हिज omniscience. But worshipper of God also consider God to be omniscient and accepted the prayer which creates contradiction. तो एक तरफ तो जो पूजा करता है वो ये भी मानता है कि जो गॉड है वो ओमनिसियंट है, यानी वो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञानी है. और एक तरफ आप प्रेयर कर रहे हैं, तो अगर वो सर्वज्ञानी है तो उसे पता होना चाहिए आप क्या प्रेयर कर रहे हैं, है ना. बट ऐसा नहीं है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है. दूसरा, द अदर टू एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, ओमनीपोटेंस एंड इमेंस काइंडनेस, ऑल्सो मेक प्रेयर अननेसेसरी. ओमनी पोटेंस एंड यानी वो सर्वशक्तिमान है, और इमेंस काइंड यानी वो अत्यंत दयालु है. अब अगर हम ये कहते हैं कॉलिंग गॉड ऑल माइटी मीन्स दैट ही कैन डू एवरीथिंग according to his will. The worshipper believes that God is the father of all living beings and therefore he is extremely kind to all of them. If both the beliefs are true, then there is no need for prayer. If God is omnipotent, then there should be no shortage in life of his devotee. अगर वो omnipotent है, सर्वशक्तिमान है, तो कोई कमी होनी नहीं चाहिए. And if God is unable to do so, तो then he is not omnipotent. And if he does not want to do so, then he is not merciful, benevolent. तो इस तरह से दोनों ही चीज़ें ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं. थर्ड प्रॉब्लम, prayer becomes futile and unnecessary even because of the eternity of God. अब क्या है ये इटर्नैलिटी, और ये अमरता, यानी जो नित्यपन है, जो नित्य है. अब क्या मीनिंग है नित्य का? द मीनिंग ऑफ नित्य इज अनचेंजेबल एंड अनचेंजिंग, कि कभी कभी परिवर्तन हो ही नहीं सकता. अब ऐसे में ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता. अब ऐसे में प्रॉब्लम क्या है? इफ द वर्शिपर प्रेज फॉर द डिजायर्ड रिजल्ट, देन दैट प्रेयर विल हैव नो इफेक्ट ऑन गॉड बिकॉज सच गॉड मस्ट रिमेन चेंजलेस. है ना, कि अगर आप कोई प्रेयर कर रहे हैं, अब मान लो ईश्वर को तो जो करना था वो किया, मान लो आपकी प्रेयर कुछ ऐसी है जो ईश्वर के विल के अगेंस्ट है या उसके प्लान के अगेंस्ट है, तो अगर वो आपकी प्रेयर मानता है तो उसे अपनी विल को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. वो कहते हैं कि जबकि ईश्वर में तो कोई चेंज है ही नहीं, वो अपने भावों को भी क्यों बदलेगा. इस तरह से कुछ लोग ये प्रॉब्लम भी रेज करते हैं. देन take the example of a raft of public shooting, earthquake, flood, and etc. People say our thoughts and prayers are with the victim or needy, praying that these things will not happen, but it will not save the people. Thus, it does not good to pray for anything or anyone. हम देखते हैं ना कितने भी ये भूकंप आते हैं, बाढ़ आती, कितने लोग उसमें मर जाते हैं, और जो दूर बैठे लोग यही दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं, बट क्या कोई बचता है? जो नुकसान होना होता है वो तो होता ही है. तो ऐसी कंडीशन में लगता है कि प्रेयर का कोई फ़ायदा नहीं है. फिफ्थ, religious people believe they are doing something about the problem when they pray, but secular people respond they would like evidence. कि जो धार्मिक लोग हैं वो कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन हमें प्रे के थ्रू मिल जाता है, प्रेयर करने से. लेकिन जो सेक्युलर पीपल हैं, ठीक है, अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इसका कोई एविडेंस है, इसका कोई प्रमाण है कि प्रार्थना के द्वारा ही कुछ हुआ है. इट सीम्स प्रेइंग इज अ वे ऑफ डूइंग नथिंग बट सेइंग टू समवन डूइंग समथिंग. ये तो किसी से कुछ कहने के लिए कि आप कुछ किसी से कह रहे हैं कुछ करने के लिए, बट वो कौन है, उसका प्रमाण क्या है, उसने किया या नहीं, ये सब कौन बताएगा. So, and the last problem is theists believe that God has created the world according to a special plan and there is no error in this plan. कि भगवान ने अपने प्लान के हिसाब से इस वर्ड को बनाया है. सो इफ दिस बिलीव इज एक्सेप्टेड देन प्रेयर विल हैव नो प्लेस इन दिस
फॉल्टलेस वर्ड, तब तो प्रार्थना की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ईश्वर ने ये वर्ड बनाया है तो ये परफेक्ट होना चाहिए. Because in such a word, the devotee can neither suffer any pain nor can he feel any kind of lack. Hence, there is no need for prayer in his life. So these are the problem in the context of prayer. All these difficulty are only for the philosopher who thinks logically about prayer and not for the worshipper of God और डिवोटी, क्योंकि उनमें आस्था होती है. ये आस्था का सवाल नहीं, ये जो समस्याएं हैं वो लोग उठा रहे हैं जो जो कहीं ना कहीं तर्क पर विश्वास रखते हैं, ना कि आस्था पर. Without worrying about this problem, the devotee establish a deep, intimate relationship with God through prayer and surrender completely to Him. So, the aim of prayer is not only to ask certain favor of God. ऐसा नहीं है कि प्रार्थना का मतलब सिर्फ ईश्वर से कुछ मांगना ही है. इट इज़ अ डेवलपमेंट एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सोल. एक धार्मिक आदमी ये सोचता है कि प्रार्थना के द्वारा आत्मा का प्योरिफिकेशन और डेवलपमेंट भी होता है. इट डेवलप्स अ हार्मनी विथ अ सुप्रीम सोल एंड एन इंडिविजुअल सोल. आपकी जो आत्मा है और जो सुप्रीम सोल है उसके बीच एक एक सामंजस्य बनता है. सो हेंस prayer can be regarded as a means of reaching the highest reality. That is why prayer has been defined as communication with God. ईश्वर के साथ कम्युनिकेट करना ही प्रेयर है. तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ. थैंक यू so much.